be in Hindi जय or in श्री English? प्रसाद जी। हम्म। वाओ। Yeah, not, yeah, exactly. You go with English because there are, I think, I don't लेट know मी English पिन माय and सो ओके नाउ ओके Sri is saying to go with English, but I will use both the languages. So don't worry. Whatever courses we bring, it is usually both in English and Hindi both. So if someone is not very much comfortable, so it's fine. So everyone, please yourself because today's class is going to be very interesting one because this is something that we all want to know. This class is really very interesting because ये टॉपिक ही अपने आप में इतना फैसिनेटिंग है फेस रीडिंग। मेरे साथ ऐसा होता था अक्सर कि whenever I would go somewhere, तो whenever people would know, I would introduce myself that see I'm a tarot reader, I'm an astrologer, तो they would always say मेरे बारे में कुछ बताइए। तो आई वुड से कि अरे कार्ड्स लगाएंगे तब बताएंगे, ऐसे नहीं होता, आई एम नॉट कैरिंग माई कार्ड्स। तो कोई बात नहीं। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर से मिलता है तो सबसे पहले उनको लगता है मेरे बारे में कुछ बताओ मेरा फेस देके, क्योंकि फेस बेसिकली क्या है, फेस ही हमारी पहचान है। बिकॉज इफ वी गो समवेयर तो लोग हमारा फेस ही तो देखते हैं ना कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। ओके, डोंट वरी, आई कैन सी दैट वे many people okay, who is there, let me ask everyone here, if there is anyone who cannot understand Hindi, please let me know. Maybe you cannot speak Hindi, but I have been with people, I have taught people who could not speak Hindi, but they can understand Hindi. So is there someone who says कि I know only English, I will understand only English? So okay, okay, there are many. Okay, fine, 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 fine. Okay, okay. हाँ ठीक है, अभिषेक जैन जी बोल रहे हैं, there are a few people only English. Okay, okay, fine, fine. Yes, Sujata ji. Yes. Okay, Ragini ji is saying Hindi. So, okay. No worries. No worries. Session is going to be 1 hour long. Uh, okay. So, I will use both the languages so that if there are people who cannot understand English, उनको हिंदी में समझ आएगा, और जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं समझ आती, आई विल रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश एज वेल। ओके, डोंट वरी। लेकिन ये मत सोचिएगा, अगर किसी को लगता है प्रॉब्लम है तो हम दो बैचेस भी चला सकते हैं, वन बैच विल गो टोटली इन इंग्लिश एंड वन बैच विल गो टोटली इन हिंदी। सो डोंट वरी अबाउट इट। like before joining, if you have a doubt, if there will be more than 4 people, so who want me to speak totally in English, so we can take 2 batches as well, because प्लीज हिंदी ही, सिर्फ इंग्लिश कम आती है, इंग्लिश कम आती है। No problem, no problem. That is why I'm just clearing myself. Today, whatever I am going to speak, I will repeat in both the languages. So don't worry if you don't understand, you will not miss anything. बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि कभी किसी को लग सकता है कि अरे हमारे यहाँ तो इंग्लिश नहीं है या हिंदी नहीं है। अगर ज्यादा लोग इंग्लिश के होंगे, एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स होंगे, तो वी कैन हैव अ सेपरेट बैच only for those who wants me to speak total entirely in English। क्योंकि पढ़ाते वक्त जब मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ तो वो होता ही है कि when you I we use one language, तो we tend to use that language only, तो we sometimes forget। I am fluent in both, so I will have no issues। तो ये डिपेंड करेगा सबका। English match will be like start together। Today we are doing the class. I will use both the languages. This is just a workshop. And when the class will start, if there will be more than 4 people, we will have a separate batch. So don't worry about it. Yes. Yes. Today I am going to be a Google translator for everyone. Don't worry. So, so, तो बट हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि when we see someone's face, तो face is the first thing that tells us many of the things. For example, when your husband comes to your house, तो आप शक्ल देख के ही बता सकते हो। जब घर में हस्बैंड आएंगे और वो थोड़ा बोलेंगे, जब परेशान दिख रहे हैं, तो इट विल कम टू देयर फेस ओनली। हम किसी का भी फेस देख के बता सकते हैं एटलीस्ट इतना कि बंदा परेशान है
या ये बंदा गुस्से में है, या ये बंदा थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज हमें ऐसी चीज बता देती है फेस देखकर ही। फेस रीडिंग भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम फेस को ही देख के, फेशियल फीचर्स की हेल्प से वी कैन टेल अबाउट समवन, वी कैन टेल अबाउट एनीवन, जिसमें हम काफी हद तक इतनी चीजें बता देंगे कि दूसरा बंदा हैरान हो जाएगा कि अरे आपको कैसे पता मेरे बारे में, मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स। अब फेस से बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, लाइक लुकिंग एट द फोरहेड, लुकिंग एट द आईज, लुकिंग एट द नोज। क्योंकि भगवान ने हम सबको डिफरेंट बनाया है। खाली ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर ट्विंस, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिफरेंट इन अपीयरेंस। तो हर एक के फेशियल फीचर्स कुछ ना कुछ कहते हैं। अब इतने सारे लोगों में किसी की बिग आईज हैं, किसी की स्मॉल आईज हैं, किसी का राउंड फेस है, किसी का ओवल। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। इफ वी हैव डिफरेंट फेशियल फीचर्स, each and every kind of facial feature tells a lot about us. We can even check कि which planet we are inflected by. If we will just by looking at someone's face, we can definitely tell about which kind of planets he might be like born, या किस planet का कितना effect है इस person पे, सामने वाले पर face देख के ही बता सकते हैं। Isn't it interesting? अगर आपको भी लगता है कि अगर मैं फेस देख के किसी के बारे में बता पाऊं तो कितना अच्छा हो, तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि यस 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 यस। आर यू, इफ यू आर क्यूरियस टू नो हाउ इट वर्क्स, प्लीज टेल मी यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, वाओ, वंडरफुल। Many of us are really curious. Wonderful. Okay. So now let's come to the point. Why is this course important to learn? Let me share a PDF with all of you. Wait a minute. Can you see my screen, everyone? Ek minute. Yes, ma'am. Spotlight this share to everyone so that everyone can see this. Can everyone see this? Yes, ma'am. Okay. So this will tell us ki what it is. This is a proper science. This is a proper study. And it is most of the time it is accurate. अगर किसी की आंख फेस को देख के या बता पाओ कि उसके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है तो कैसा हो, इज इट, वुडंट इट बी ग्रेट? यस, ऑफ कोर्स इट विल। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री किया होगा, राइट? या हम्म हम लोगों ने, बहुत लोग हम में से पामिस्ट्री हैं, पामिस्ट्री कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, हो ऑल हैव डन पामिस्ट्री? और आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं? बिकॉज देयर माइट बी मैनी पीपल फॉर whom इट माइट बी अ न्यू थिंग। कि अगर आप पहले से ही कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हैं तो यस लिखिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बिगनर हैं। Because this course will help all of us, even if we are not connected to astrology, that then also it is very helpful course. New in this field, Manteji is new, Ikra is new, Shivani is also beginner. Okay, okay, many people are new. Oh my God, so good to hear that. Because new लोग जो होते हैं ना, वो कुछ परसेप्शन लेकर नहीं आते हैं, तो उनको सिखाने में और भी मजा आता है। और ये चीज इतनी अच्छी हो सकती है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो सोचो कितना अच्छा हो, आपको देख के पता चल जाए आपका टीचर कितना स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमें सामने वाले को कैसे हेल्प आउट करना है, या हमें इससे क्या एक्सपेक्ट करना है। क्योंकि आधी प्रॉब्लम्स हमारी इस चीज से होती है कि किसी ने गुस्से से देखा, हम नाराज हो गए, राइट? तो बहुत लोगों को अगर देख के पता लग जाए उनका रियल नेचर क्या है, उनके लाइफ के इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो सोचिए हमारा बिहेवियर कितना बेटर हो जाएगा। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मुझे अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, मेरे को कोई अपने यहाँ मेरे वैकेंसी है, मैंने किसी को अपॉइंट करना है, तो बाय लुकिंग एट द फेस इफ आई कैन जज दैट पर्सन, व्हाई नॉट? इट इज रियली गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। सो फेस रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ सामुद्रिक शास्त्र। मैंने इसका नाम इसीलिए लिया था
पामिस्ट्री का, क्योंकि पामिस्ट्री भी सामुद्रिक शास्त्र का ही पार्ट है। तो जिन लोगों ने पामिस्ट्री किया है दे नो इट वेरी वेल। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेसेस। फेसेस के ऊपर जो भी हमारे फीचर्स हैं, टाइप ऑफ चीक्स, टाइप ऑफ फोरहेड, लाइंस ऑन द फोरहेड, इवन दीज चीक लाइंस, इवन कलर ऑफ द आई बॉल्स, even size of the eye, and then ears, shape of the ears, length of the ear, each and everything matters. तो ये नॉलेज ऑफ बॉडी फीचर्स है सामुद्रिक शास्त्र में। और ये एंशियंट टेक्निक है, इट इज नॉट कि कहीं कुछ नया आ गया। पहले से ही हमारे ऋषि मुनि इसको यूज करते थे, लेकिन ये कॉमन ज्ञान नहीं था। कोविड आने के बाद से, जब से हम ऑनलाइन हुए, नाउ द नॉलेज इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। इट हैज बिकम easier फॉर ऑल ऑफ us टू understand and to get the knowledge anywhere, even if we are sitting anywhere in the world। तो ये चीजें बहुत अफोर्डेबल हो गई और हमारे पास आने लगी। तो ये दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ कोविड। बहुत सारी चीजें नेगेटिव थी ऑफ कोर्स। उसके बाद फेशियल फीचर्स को देखना, साइकोलॉजी भी इवन इसमें पता चलती है कि सामने वाला पर्सन किस टाइप की, इसके दिमाग में क्या चलेगा, क्या ये सुसाइडल थॉट्स का है या नहीं, ये हैप्पी गो लकी टाइप का है, चीयरफुल नेचर का है। यू कैन जज all everything from just by looking at someone's face, in the skin color, features, marks on your face, if there is a mole, then what does it say, shape of the facial features, ठीक है। तो everything is told in this course and बहुत ही एक्साइटिंग है। फेस रीडिंग कौन कौन यूज कर सकता है, हु विल यूज? इट इज यूज बाय मेनी डॉक्टर्स, ऑल मॉन्क्स, स्पिरिचुअल गुरुज टू नो हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। डॉक्टर्स क्या करते थे, आंखों को ऐसे करके देखते थे ना, आंखों को देखते थे पहले, वैद्य वगैरह, हाथों की नब्ज पकड़ना, पूरा अच्छे से देखना, अच्छे बॉडी फेस को देख के ही कई श्लोक बताते थे कि अरे फेस बहुत येलोइश है तो इसको अनीमिया हो रहा है। काफी चीजें पता चलती हैं क्योंकि फेस से। व्हेन वन इज स्ट्रेस्ड इवन, it immediately reflects on one's face, as I discussed with you. So sadness, happiness, anxiety, tension, stress, everything shows on your face। and even if you are tired, fight किया, ये सब आपको पता चल जाता है किसी का फेस देख के। आप इस कोर्स में क्या क्या जानेंगे, यानी कि फेस, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बैठा बैठा दिया और आपको बोल दिया कि हाँ जी रागिनी जी आपके साथ ये है। फिर पिंकी जी पूछेंगी फिर मेरे फेस से ही बताओ। अब पिंकी जी का फेस रागिनी जी के फेस इज एंटायरली डिफरेंट, तो ऑफ कोर्स देयर फीचर्स स्पीक डिफरेंस अब बिटवीन देम। ओके, तो इसमें फीचर्स ऑफ योर फेस एंड देयर इम्पैक्ट्स विल बी टोल्ड। व्हाट इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, इवन रिलेशनशिप में इस पर्सन क्या होगा वो हमारे फेस ही बता रहा है कि आपका फेस ऐसा है इसलिए आपका रिलेशनशिप पुअर रहेगा, या यू विल हैव गुड रिलेशनशिप, या यू विल स्टे single throughout, you will not be very lucky in the relationship। many features tell this thing। how to predict the future, you will be taught in this course that future कैसे predict करना है just by looking at the face। आपकी health बताता है, remedies बताते हैं। और फिर can you believe कि अगर मैं बोलूं कि you can change your future just by changing the color of your hair। आपका हेयर कलर भी आपको इफेक्ट करता है ना इंटरेस्टिंग। मीनिंग ऑफ एवरी स्पॉट, लाइन और मार्क ऑन योर फेस, इवन अगर आपके नोज पे मोल भी हो गया है, या कई बार हमारे को पिंपल्स हो जाते हैं, उसका भी क्या रिलेशनशिप है, वो भी सब आपको पता चल जाएगा जब आप ये कोर्स कर लेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फेस रीडिंग, व्हाई शुड वी लर्न इट? वी शुड लर्न इट टू एनालाइज अ पर्सन in a business or partnership, because nowadays it has become a common problem that when you meet someone, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ this is a very nice person, बातें करने में बहुत अच्छा है, मीठा है, प्यारा है, ऑनेस्ट है। बातों से लोग आजकल क्या हो रहा है, बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं ना ऑनलाइन। कोई आपसे बात करता है फोन पे आधा घंटा और आप उसको ओटीपी दे देते हो उठाकर, या आप अपने सारी डिटेल बता देते हो, बिकॉज द वे ही इज टॉकिंग यू गेट वेरी मच लाइक, आपको लगता है बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, वो आपको इम्प्रेस कर लेते, यू गेट इम्प्रेस्ड बाय इट। तो अब आप किसी को पार्टनरशिप करते हैं तो आपको पता नहीं होता वेदर दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर पार्टनरशिप और नॉट, वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। तो फेस से अगर आप किसी का जज कर पाओ कि नहीं यार ये बंदा विश्वास लायक नहीं है, तो कितना अच्छा हो जाए, राइट? तो यू कैन एनालाइज अ पर्सन इन अ बिजनेस पार्टनरशिप। मैरिज कंपेटिबिलिटी कैन ऑल्सो बी analyzed just by looking at the face।
Staff selection, as I told you, if I am going to select some staff for myself, so just by looking at face, हमें काफी हद तक उसके बारे में पता चल जाएगा, उसका नेचर, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, वो बंदा कितना अच्छा है, कितना मिलनसार है, या कितना गुस्से वाला है. एवरीथिंग कैन बी टोल्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस. इट कैन हेल्प पीपल सेव टाइम बाय टेलिंग देम अबाउट देयर पोटेंशियल, देयर ट्रू पोटेंशियल. बिकॉज कई बार हम बहुत सारा टाइम इसे वेस्ट कर देते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है. तो फेस देख के जब लोग आपके पास आएंगे, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर फेस यू कैन टेल कि नहीं, आप तो गलत प्रोफेशन में हो. व्हाई आर यू बिजनेसमैन? यू वर सपोज टू बी एन आर्टिस्ट. आपका तो आर्टिस्टिक करियर ज्यादा अच्छा है. तो मे बी कि वो उसके अंदर एक आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट हो और आप उसे गाइड कर पाओ, एंड देन ही कैन चेंज हिज प्रोफेशन इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम एनीवेयर. यू कैन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल. वही कि किसी की कैपेसिटी है नहीं, आप जबरदस्ती उसे हार्ड वर्क करा रहे हो. आपको पता है, फेस देख के आप बता सकते हो भैया इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ही इज अ लेजी काइंड ऑफ पर्सन, और आप ऐसे पर्सन को लगा दो फील्ड वर्क में, तो ऑफ कोर्स ही विल नेवर बी एबल टू डू दैट बिकॉज ही इज meant to do some smart work, not hard work. तो our face can tell us that also. अभी मैं बताऊंगी भी, हम इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि कैसे पता लगेगा. बहुत छोटी सी चीज आप पढ़ाऊंगी, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे क्लास से. एवरी वन विल टेक समथिंग और द अदर थिंग. एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट समवन. आप फिर अपने घर में दूसरों का देख के चेक करना. कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं इससे व्हेन यू नो, आपको पता हो. जैसे मैं न्यूमरोलॉजी से भी ये चीज बोलती हूँ कि व्हेन न्यूमरोलॉजी अगर सीख जाएं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं. बिकॉज वी नो द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्सन. इफ आई नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ रागिनी जी, आई नो, आई विल कम टू नो, मेरे माइंड में कैलकुलेशन होगी, एंड आई विल कम टू नो अबाउट हर प्रॉज एंड कॉन्स. तो मैं ऐसे ही काम करवाऊंगी जो मुझे पता होगा. या फिर सपोज कॉन्फ्लिक्ट फिर इसी से तो होते हैं ना. अब हस्बैंड वाइफ के झगड़े आधे क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जिनका अ, जैसे नंबर 8 नंबर है, जैसे जिसका शनि का नंबर है, अगर आप उसको बोलोगे कि तू ग्रुप में बैठ, सबके साथ मिक्स हो, वो नहीं होगा. लेकिन एज अ वाइफ, वाइफ्स क्या होती है, अरे तुम तो किसी से मिलते जुलते ही नहीं हो, तुम बात ही नहीं करते. लेकिन जब वेन यू कम टू नो कि इसकी तो ये ड्रॉबैक है, कर ही नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स इट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ना. तो इफ वी नो द ट्रू नेचर ऑफ दैट पर्सन, तो ऑफ कोर्स इट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पीपल, ईदर दे आर, वेदर दे आर फ्रेंड्स और दे आर सम रिलेटिव्स. they can easily, lies can also be detected just by knowing someone. कि आपको फेस से पता चलेगा कि हाँ ये बंदा झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलने की आदत है, और ये अपने आप मैनिपुलेटिव होता है. ओके. तो ये आया कहाँ से? ये एंशियंट, हमने बोला ये एंशियंट टेक्स्ट आया कहाँ से? हिस्ट्री ऑफ फेस रीडिंग. जो गरुड़ पुराण है सामुद्रिक शास्त्र में, उसमें लिखा गया है कि इट इज अर्लीस्ट पीसेस ऑफ नॉलेज. एंड इसके अंदर देखो, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है: हस्त समुद्रिका, कपाल समुद्रिका एंड मुख समुद्रिका. तो फेस रीडिंग इसका पार्ट है. पामिस्ट्री हस्त, जो हाथों की लाइंस को देख के बनाया गया है, और दूसरा है कपाल, जिसमें आपको फोरहेड वगैरह को देख के जो रीडिंग की जाती है, फ्रेनोलॉजी जिसे कहते हैं. तो अ पर्सन's फेस कैन टेल द डोमिनेंट प्लैनेट्स इन एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर और द अदर वे अराउंड. तो कोई भी प्लैनेट, कौन से प्लैनेट से इन्फ्लिक्टेड है ये पर्सन, इस पे कौन से प्लैनेट का असर है, दैट कैन बी टोल्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस. अभी मैं इसके बाद जो उन चीजों पे आने वाली हूँ, आई विल आस्क देन कि हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट रेजोनेट विद द रीडिंग. तो समुद्र देवता जो थे, deity of the ocean, it gave the concept of samudrik shastra after watching Lord Narayana relaxing on Sheshnag. हम सब जानते हैं कि लॉर्ड नारायणा जो है वो शेषनाग पे आराम करते हैं, माता लक्ष्मी उनके पास में रहती हैं. तो जो समुद्रिक देवता थे, उन्होंने बड़े गौर से जब विष्णु जी को सोते हुए देखा, तो ही अज्यूम्ड कि लॉर्ड विष्णु कितने ग्रेसफुल हैं, इनकी बॉडी का एक एक मार्क कुछ तो बात कहता है. तो लॉर्ड विष्णु, he assumed that the marks on the body of Lord Vishnu are divine, and due to these marks, Lord Vishnu is so glorious. तो उनकी उस ग्लोरी को समझने के लिए उन्होंने उनकी बॉडी पे जो भी, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आईज को लेके, फोरहेड को लेके, या बॉडी पे कोई मार्क्स हैं, लाइंस हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने पूरा एक शास्त्र लिख डाला. और
वो पर्सनालिटी जो उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करती थी, उन्होंने पूरा शास्त्र लिख डाला, जिसको हमने बोला फेस रीडिंग। अब हम आ गए काम की बात पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बीच में अपने बारे में बता दूं। आज मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया बिकॉज आई कुड सी दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंट हियर इज ट्रू ईगर टू लर्न अबाउट इट। सो आई थॉट ऑफ जस्ट टू गिव अ स्टार्ट, बिकॉज बहुत लोग ये सोच के आते हैं अरे पढ़ना शुरू करें, लेकिन मैम है कि अपनी बातें करने जा रही हैं। तो लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू वन मोर थिंग कि आई एम, लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन नाउ। आई एम तनु अग्रवाल. I am founder of Spiritual Journey platform, and I am a tarot reader, numerologist, and angel healer, face reader, akashic reader. I have done so many modalities, and now I am here. I am bringing a new course for all of you, which is called face reading course, जिसके बारे में अभी अभी हमने जाना कि फेस रीडिंग हमें कैसे हेल्प करती है, क्या हम पता लगा सकते हैं, क्यों हमें करना चाहिए। ओके। Can you तो मैं पास्ट में काफी सारे कोर्सेज करा चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस बार फेस रीडिंग लाया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो नहीं सकता। अगर आप इसमें जुड़े भी हैं, इवन यू इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर देन इट विल हेल्प यू। इवन इफ यू आर अ नेव पर्सन, यू आर वेरी न्यू टू दिस मोडालिटी, यू आर नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, देन आल्सो इट विल हेल्प यू। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, नाउ लेट मी शेयर इट वंस अगेन। अब हम साथ साथ बात करेंगे। मैं पूछना चाहूंगी उन लोगों से जो यहाँ बैठे हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अब सामुद्रिक शास्त्र में सबसे पहले प्लेनेट जिसका नाम आता है दैट इज सन। सन हम सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इसे एक प्लेनेट माना गया है। हालांकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको पता है इट इज अ स्टार एक्चुअली। बट सन, और सन की जो क्वालिटीज होती हैं वो हम कहीं ना कहीं जानते हैं। मैं ये आगे जाने से पहले, फेशियल फीचर्स जाने से पहले, लेट मी टेल ऑल ऑफ यू जो बिल्कुल न्यू है इस मोडालिटी में, कि सन मतलब रूलर, लीडर, किंग। क्योंकि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज अ किंग। किंग मतलब डोमिनेंट, लीडर, एंड बहुत ही ज्यादा रूलिंग होना, डोमिनेंट होना। सन की क्वालिटी में सबसे ज्यादा यही आता है, फादर पर्सनैलिटी। सिर्फ रूल ही नहीं करता, सबको साथ लेके भी चलता है, सबका ध्यान भी रखता है। ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है सन का। नाउ, अगर किसी का सन बहुत स्ट्रांग है, आप में से जिन एस्ट्रोलॉजर्स को पता है या जिनको नहीं पता, दे कैन मैच देयर फीचर्स विद दिस, तो उनको पता लग जाएगा कि वो किस वजह से ऐसे हैं। इसका मतलब उनका सन स्ट्रांग है। इट गिव्स अ हैंडसम राउंड फेस। जिसका राउंड फेस है उसका सन स्ट्रांग होगा। इसका मतलब उसको राउंड फेस क्यों मिला है? बिकॉज सन can you क्वालिटीज हैं उसके अंदर। विद एन अट्रैक्टिव चिन एंड अ नोज, curly hair, thick arms, black eyes, and high cheekbones are some of the other facial features जिनको जिनका sun powerful है। Those influenced by sun have a deep, loud voice, are self-reliant, and have a sharp intellect. They are can very, you very intelligent. Okay? तो आप मैं लोग म्यूट मैच कर दीजिए करिए सबको, जिस बीच में जिस डिस्टर्बेंस हो हाँ, रही मैंने है। म्यूट कर दिया पिंकी जी पहले ही। प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड, देन द क्लास विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि बीच में फिर ब्रेक आता है। तो जिन लोगों के राउंड फेसेस हैं, तो वो अपने आप को मान के चल सकते हैं कि उनका सन स्ट्रांग है। अब मैं पूछना चाहूंगी पिंकी जी से। पिंकी जी का राउंड फेस है, तो पिंकी जी, क्या आपको लगता है कि आपका सन स्ट्रांग है? और कहीं ना कहीं वो सन वाली क्वालिटीज है, पीपल कम टू यू फॉर when they are in distress, do people come to you for help? हाँ, बहुत सारे, मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो सारी, और मेरे फैमिली में भी सब मुझे हेल्प करते हैं। और मेरी फ्रेंड तो ऐसी है कि मतलब जिसको बोलते हैं जान देने के लिए तैयार होती है, ऐसी। हम्म, क्योंकि आपकी सन पर्सनैलिटी है, रूलिंग है, पीपल गेट इम्प्रेस्ड विद यू। लीशा जी, क्या आपके साथ भी ऐसा है? आपका भी फेस मुझे राउंड नजर आ रहा है, तो आपको लगता है आपके सन की क्वालिटीज हैं आपके अंदर कि यस, पीपल कम टू यू, पीपल लुक एट यू व्हेन दे हैव प्रॉब्लम्स? मैम सारी तो नहीं लग रही हैं पर कुछ है। हाँ, लग रही हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि 10 है तो 10 में से 10 हो, लेकिन 6 7 भी हैं तो वो मैच करता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो देखो, एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, और भी बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। वॉइस कैसी है,
आईज की में भी बहुत डिफरेंट शेप्स होती हैं, डीप आईज या स्मॉल आईज, बिग आईज, एवरीथिंग। हाँ, दीज पीपल आर गुड ओरेटर्स। आर यू गुड ओरेटर? आप लोग क्या ज्यादा अच्छे बातें कर पाते हो, बता पाते हो लोगों को कि हाँ भाई अच्छे से समझा पाते हो? यू आर अ गुड कम्युनिकेटर या? लीशा जी और पिंकी जी, क्योंकि मुझे सामने इनका ही फेस दिख रहे हैं जो राउंड है। इसलिए यस मुझे, मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस मैच हो मतलब रहा लोग सुनते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। है। हाँ, ओके। तो जब आप बोलो और लोग सुने तो दे मीन्स गुड ओरेटर हो आप, और लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जब किंग बोलता है, जब राजा बोलता है तो सब सुनते हैं और मानते भी हैं, राइट? तो दे आर बॉर्न लीडर्स। अब दूसरा आ गया मून। जिनका जो मून से इन्फ्लिक्टेड हैं, द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मून, दे हैव अ चार्मिंग रेडियंट फेस एंड दे आर वेरी पीस लविंग। वो कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। दे विल बी वेरी कूल लाइक मून। मून क्या होता है? ठंडा प्लेनेट कहा गया है। बिल्कुल कूल डाउन, बिल्कुल सबको साथ लेके चलने वाले। दे आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग। देयर एंगर इज यूजुअली अंडर कंट्रोल। दे विल नॉट गेट एंग्री इन नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल सिचुएशंस। The moon effect gives them big eyes through which they love to dream. If you have big eyes, might be that, and you have a charming face, so might be you have a personality of moon. And because of their artistic bent, they fall for beautiful things in life. Beauty attracts them. अब मैं जरा देखूं इनमें से कौन मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज स्टार्ट योर वीडियो सो दैट। My face. Hello. यस, मून के पर्सन्स को जरा हम देख लें कौन मुझे मून फेस लग रहा है, फिर वो बताएंगे कि क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। यस विद्या जी, क्या आपको गुस्सा कंट्रोल में रखते हैं आप अपना? मैं मूडी हूँ, मुझे ये पता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा केयरिंग, मूडी भी हैं आप। अप्स एंड डाउन्स, हाँ हाँ, इमोशंस इमोशंस अप्स एंड बहुत डाउन, आते हैं। द अप्स वे एंड डाउन्स, मूड है ना? चेंजेस ऐसे मेरा मूड चेंज होता है ना? उतने ही फास्ट। राइट राइट राइट, है ना? यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्यूटी, राइट? या एंड यस यूजुअली आप मैम। काम रहते हो, आप किसी को आप जल्दी से बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते, आप दूसरों को भी शांत कर देते हो। कोई नहीं यार, इट्स ओके, इट्स फाइन। डू यू डू दैट? यस मैम, आई डू दैट, बट थोड़ा सा मेरा मूडीनेस मुझे ही परेशान कर देता है, बस ये हाँ, प्रॉब्लम होती है। देखिए मून्स का है ना आपके ऊपर असर। हाँ, तो एक और मुझे अभी मेरी रीमा जी मून की महादशा चल रही है। चल रही है, देखा? हाँ, देखा, अब आप मैंने मेरी बोला प्लैनेट चंद्रमा। से कनेक्ट हो रहा है ना, मून की महादशा चल रही है, हाँ, उनके तो फेस अभी में आप मुझे मून मून से नजर आ रहा है। रिलेट कर रहे हो, तो मेरी महादशा चलती है। मून एवरीडे शेप साइज चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, और मेरा मूड एवरीडे चेंज होता है। सो डिसीजन मेकिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, ये मून वाले को रहेगी, बिकॉज वो अपने हाँ अंदर ही ज्यादातर चीजें रखते हैं, और अपने थॉट्स में, इमोशंस में बह के वो बड़े परेशान हो जाते हैं। किसी ने थोड़ा बोल दिया तो इतना ज्यादा लग जाएगा, है ना? मैम, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। राइट? हम्म। देखो फेस से पता चला। सेंसिटिविटी। या यस मैम, हाँ। सेंसिटिविटी, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल नेचर। और आपको आगे इमोशनल। बढ़ के काम करने से अच्छा पीछे रह के सपोर्ट करना अच्छा लगता होगा, राइट? मैम, आई फील कि माय इमोशनल सपोर्ट, माय हस्बैंड हाँ, सेज कि माय इमोशनल सपोर्ट इज द रीजन व्हाई ही इज व्हाट ही इज। राइट। सी, या ओके। और रीमा जी, क्या आपकी भी ये पर्सनैलिटी मैच हो रही है? Attracted towards beautiful things, nurturing, caring, whatever I told about Vidya ji, is that nature yours also? Yes? Great. Yes. Wow. तो ठीक है, जैसे जैसे आएंगे आप चेक करिएगा। Now let us move to the next planet. मून का हो गया, एंगर कंट्रोल में रखते हैं, मन में आएगा जरूर लेकिन निकालेंगे नहीं। अपने मन में ही सोचेंगे, ये मत सोचे कि इन लोगों को बिल्कुल ही एंगर नहीं आता, जब आएगा तो फट भी पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिश रहेगी कि अपने अंदर से ही रहें, जल्दी से एक्सप्रेस ना करें, राइट? और इट बिल्ड्स एन ऑरा दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन टुवर्ड्स देम। इज दैट ट्रू विद्या जी, रीमा जी? Yes, ma'am. या पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मैम। यू हैव अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। यस मैम। Everyone या can see their faces, they really have an attractive personality, everyone has attractive। अब जैसे सन वाले हैं, उनके फेस पे एक अलग ही तेज होता है, बहुत ग्लो नजर आएगा सन के जो लोग होंगे, जो हमने पहले पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू मार्स। इसके अंदर कैसा हो जाता है लोगों का? स्मॉल हेड विद अ लॉन्ग फेस। जब बहुत इलोंगेटेड फेस हो, लंबा हो, तो वो मार्स से इन्फ्लिक्टेड होते हैं। उनकी स्किन ड्राई होगी, दे हैव लश करली हेयर,
ब्लैक एंड शैगी आर्म्स, एंड दे, जो मार्स का इफेक्ट है वो उनको टॉल भी बनाता है, एग्रेसिव भी और ईगोइस्ट भी बनाता है। ओके, दे आर ईगोइस्ट, जो कि सन और मून, सन वाले में ईगो है, मून में नहीं है ईगो। एंड बिकॉज ऑफ देयर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग टेम्परामेंट दे इंडल्ज इन फाइटिंग एंड पावर डिस्प्लेस टू सॉल्व एनी इश्यूज। तो आपको सबको वैसे ही पता है, मंगल माने दंगल। जिसका भी लोगों का मार्स प्लेनेट होता है, रेड प्लेनेट, गुस्से में लाल, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। अब मंगल से जो इन्फ्लेक्टेड है मार्स वाले, चलो उनको चेक कर लेते हैं। आप में से कौन लग रहा है मंगल से इन्फ्लेक्टेड, मार्स वाले? लेट मी चेक, लेट मी चेक। स्मॉल हेड एंड बिग फेस। हम्म। और भी देख लूं जरा। इस पेज पे सबने अपने आप को मन किया हुआ है। प्लीज अगर वीडियोस ऑन रखेंगे ना तो मैं ढूंढ पाऊंगी, और फिर उनसे पूछेंगे हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, यहाँ तो कुछ नहीं है, फ्रंट पेज पे मुझे लग रहे हैं। ओके, इन्हीं में से ढूंढते हैं, स्मॉल हेड एंड बिग फेस। यहाँ पे भी कम है वीडियोस, या यहीं देखेंगे। मयंक जी, मयंक जी, क्या आपको गुस्सा बहुत आ जाता है? इवनिंग मैम। यस मैम। या काफी ज्यादा। काफी ज्यादा, क्योंकि देखिए इनका मार्स इन्फ्लिक्टेड है, इन्फ्लुएंस है, ये मार्स से इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप जब आप किसी को हॉरोस्कोप दिखाया है आपने मयंक जी? नहीं मैम, अब तक तो नहीं। नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत हम इनके बारे में बता देंगे। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा, और हमेशा अग्रेशन भी बहुत आ जाता है। जरा सा गाड़ी किसी से टच होगी, निकल आएंगे, हाँ आ निकल बाहर, बताता हूँ तुझे। करते हो? जी मैम। हाँ मैम एकदम। देखा, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और मैम मेरे को एक और पॉइंट भी ऐड करना है। मैं छोटा नहीं सोचता, मतलब मेरे को थोड़ा गुस्सा उनमें आता है जो खुद को थोड़ा डीमीन करता है या छोटा सोचता है कि नहीं मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर सकता, या मतलब किसी को भी जैसे कोई भी पर्सनैलिटी को वो थोड़ा बड़ा बना देगा, जैसे नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, वो भगवान है वो है। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो आप उससे ऊपर बन सकते हो। नहीं, वो ठीक है, तो गुस्सा थोड़ा ऐसा भी है बस मैं। इस बात पे, किसी ना किसी बात पे तो हर एक को गुस्सा आता है ना। हाँ गुस्सा। तो पर हाँ, एक होता है ना कि अग्रेसिव बहुत नेचर हो बहुत जाता मैम है। अब जैसे बहुत। मैंने मून वालों की बात की, मून वाला अग्रेसिव हाँ नहीं होगा कभी भी। उसके साथ, बेचारे के साथ कुछ भी अन्याय हो जाए, वो बैठा रहेगा, ही विल नॉट, मोस्टली दे विल नॉट रिएक्ट अनटिल अनलेस कि उनको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया जाए। तो वही वाली बात है, इंसान ही है, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, है ना। तो लेकिन हाँ, आपने बताया आप टॉल हो, आपकी हाइट अच्छी है। कितनी हाइट है हाँ। आपकी? 6 फीट। हाँ देखा, 6 फीट। सिक्स ही इज फीट टॉल, ही इज अग्रेसिव, ही इज इगोइस्ट। कर्ली हेयर है, बाल थोड़े छोटे रखे, शायद बढ़ाएंगे तो कर्ली भी लगेंगे। ब्लैक भी है कर्ली हेयर, ठीक है। और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग टेम्परामेंट होता है, फाइटिंग और पावर डिस्प्लेज में बहुत शौक होता है, क्योंकि मंगल मतलब अपनी पावर दिखाना, आर्मी, पुलिस, ये सब। नेक्स्ट आया हाँ। प्लैनेट हमारा यस मरकरी, राइट मयंक जी? सही है, सही बोला ना, मैच कर रहा है। एकदम एकदम मैम। हाँ, एंड नाइस। आई एम एस्पायरिंग टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। वाओ वाओ, आपके लिए बहुत सूटेबल है। तो देखिए, अब जैसे थैंक यू। किसी के फेस से ही हम बता सकते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में जाइए, आपको सूट करेगा, क्योंकि वो टेम्परामेंट, वो अग्रेशन जो चाहिए आईएएस ऑफिसर में, वो मयंक जी में मिल जाएगी। अब किसी मून वाले को भेज देंगे आईएएस ऑफिसर बनने या पुलिस में, तो वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाएगा। तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि नहीं भाई, आपके लिए ये लाइन नहीं है, आप तो किसी ऐसे में जाओ जहां आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, जहां पे आप इमोशनल लोगों को गाइडेंस दे सको, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे मर्करी की। ऐसे लोगों का वाइट फेस होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, और फिजिक भी काफी स्ट्रांग होगा इनका, शाइनिंग हेयर, और फिक्कल माइंडेड रहते हैं। लेकिन क्योंकि मर्करी एक बहुत ही ऐसी एनर्जी है बच्चों वाली, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अभी ये चाहिए फिर वो चाहिए, ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज माइंड। तो मर्करी इन्फ्लिक्टेड पीपल आर क्वाइट चाइल्डिश, दे आर नेचर लवर्स, एंड स्मेल ऑफ नाइस फ्रेग्रेंस अपलिफ्ट देयर मूड इजीली। तो जिनका भी वाइट फेस है, क्या उनको लगता है कि उनको मैच हो रही हैं ये? तो वो मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आए जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु, बृहस्पति।
तो जुपिटर हमें बताता है हेल्दी, हैवी एंड राउंड फेस्ड। ये लोग थोड़े से हेल्दी होंगे बॉडी, जो थोड़े मोटे, क्योंकि जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। तो जुपिटर से इन्फ्लिक्टेड लोगों की बॉडी भी थोड़ी सी हेल्दी होगी, थोड़े वो नॉर्मल से ज्यादा होंगे, प्लम्पी होंगे, बहुत स्किनी नहीं होंगे। ओके, तो राउंड फेस रहेगा इनका भी। इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर, डिम्पल्ड चिन, इनके चिन पे ज्यादातर डिम्पल होंगे। वेल प्रपोर्शन नोज होगी। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं क्योंकि गुरु का नंबर है, गुरु का प्लैनेट गुरु है ऑलरेडी, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे हैव एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटी। दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर जनरस ऑल्सो, लेकिन उनके अर्ली स्टेज पे ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, हेल्दी, हैवी एंड राउंड फेस्ड और फेयर कॉम्प्लेक्शन का आप देख सकते हैं आपके आसपास हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत हम डिटेल में बाद में जाएंगे, थोड़ा हम पढ़ के जाएं आज क्लास के बाद। नेक्स्ट आ गया वीनस। वीनस से इन्फ्लिक्टेड जो लोग होंगे, दे उनका जो फेस होगा, उनकी आईज बहुत डीप होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, नोज लंबी और पूरा फीचर्स, क्योंकि वीनस इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। जितने भी आप फिल्म स्टार्स देखोगे उनका कहीं ना कहीं वीनस से कनेक्शन है। उनके फेसेस कितने अट्रैक्टिव होते हैं आप देखते ही हो, बिल्कुल बैलेंस्ड फेस, जैसे शिजल फेस हो, उनको देखेंगे हम कहते हैं ना भगवान ने फुर्सत में इन्हें बनाया। एंड दे हैव ब्यूटीफुल वॉइस ऑल्सो। ओके, उनको जैसे फुर्सत से बनाया गया है, तो वो ऐसे लोगों के जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, लंबी नाक, बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट फीचर्स होते हैं वो वीनस से इन्फ्लिक्टेड पर्संस के होते हैं। इट बिल्ड्स एन ऑरा दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन टुवर्ड्स देम, जस्ट लाइक मून, चांद सा चेहरा भी वो भी अट्रैक्शन बनाता है, एंड वीनस भी ऐसा ही है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये कुछ अभी हम देख रहे हैं, अभी प्लैनेट्स के हिसाब से देखेंगे, बाद में हम फेशियल फीचर्स के हिसाब से भी स्टडी करेंगे। सैटर्न से इन्फ्लिक्टेड जो लोग होंगे उनकी आई स्मॉल होंगी, पॉइंटेड नेल्स, हाई चीक बोन्स, चीक बोन्स यहाँ पे हाई होंगे और ओवल शेप्ड फेस होगा। अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भगवान राम को सबसे सुंदर बनाया गया है, और फिजिकल डिस्क्रिप्शन से ही जब हनुमान जी ने फिजिकली डिस्क्राइब किया था माता सीता के सामने, तभी उन्होंने ट्रस्ट किया था कि हाँ, उनका जो माना जाता है डीप वॉइस, ग्लॉसी स्किन, ये सब उनकी भी स्टडी की गई है, भगवान राम की भी। फिर एक अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं। अर्धनारीश्वर मतलब आधा मेल हाफ फीमेल। शिव जी और पार्वती जी को एक अर्धनारीश्वर के रूप में भी इमेजिन किया गया है। तो ये जो इसे बताया जाता है, ये अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि एवरी पर्सन है पर्सनैलिटी। उसको ये पता नहीं क्या कुछ हो गया। मेल पर्सनैलिटीज हैं, कुछ मेल फीचर्स हैं, कुछ फीमेल हैं, राइट? हाँ, हर पर्सन में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बराबर से होती है। तो हम फेस रीडिंग का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हम यहीं से सीखेंगे कि हाउ आवर फेस आल्सो डिपिक्ट्स कि क्या क्या है। तो हमारा आधा फेस राइट वाला वो कहलाता है शिव, लेफ्ट वाला कहलाएगा शक्ति। तो चलिए मैं अब कुछ आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल करूंगी शिव शक्ति का बताने के लिए। अब शिव थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ये हमारी जो क्लास चलने वाली है आज की भी और कोर्स के दौरान भी, ये पूरी प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो हाथ के हाथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सबके फेसेस के अकॉर्डिंगली, फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग एक एक फीचर चेक किया जाएगा हर पर्सन का। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए मैंने क्या बोला, राइट साइड आपकी बॉडी को, फेस को हाफ में अगर हम डिवाइड करें, तो राइट वाला जो हाफ है दैट रिप्रेजेंट शिव एंड लेफ्ट वाला हाफ रिप्रेजेंट शक्ति। मींस राइट साइड मेल, लेफ्ट साइड फीमेल। तो राइट साइड शोज योर सोशल लाइफ, योर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी, योर पोलाइटनेस। ओके, सो एंड योर लेफ्ट फेस रिप्रेजेंट्स योर फैमिली, relatives, inner strength, emotional nature. Okay, so it depends कि which kind of person you are just by looking at the half of your face. Let me tell you how will it work. देखिए अब आप कहोगे मेरा तो दोनों साइड का फेस सिमिलर है ना? We most of us will think कि how is it possible that my how मैं both are similar, both are identical. Usually हमें सिमेट्री में यही सिखाया जाता है ना कि बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन जब आप बहुत गौर से किसी का फेस देखोगे, यू विल लुक एट द पिक्चर ऑफ समवन, तो आपको जो हिस्सा ज्यादा प्रोमिनेंट लगे उसका,
कि राइट प्रोमिनेंट है या लेफ्ट प्रोमिनेंट है, तो दैट उस बंदे में वो फीचर्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कुछ लेडीज भी ऐसी होती हैं जो जिनमें वो मेल वाले गुण ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो सारी की सारी लेडीज आज घर में ही होती और सारे के सारे जेंट्स बाहर ही होते। नाउ द टाइम इज चेंजिंग, वी कैन सी females working everywhere in every domain. They are pilots, they are in army, they are going to all those professions which were earlier prohibited for them, right? So क्यों हुआ? क्योंकि हर मेल और फीमेल में मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर दोनों के ही होते हैं, लेकिन किसी किसी का ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मैंने बहुत लड़कों को ऐसे देखे हैं हु आर क्वाइट इमोशनल एंड दे क्राई, जबकि हम एक परसेप्शन बनाया हमने, स्टीरियोटिपिक सोच हमारी यही है कि मेल्स डोंट, उनमें तो इमोशनलेस होते हैं वो तो। मैंने बहुत मेल्स को देखा जो मूवी देखते हुए भी आंसू टपकाते हैं, देखा है मैंने, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस है ऐसा? यस यस यस, अगर है तो यस करिए, खाली हैंड रेज करिए कि हाँ मेल्स भी इमोशनल होते हैं, राइट? तृप्ति जी ने हैंड रेज किया। और कौन मानता है कि हाँ मेल्स कैन ऑल्सो बी इमोशनल? राखी जी भी हैंड रेज कर रही हैं, माही जी भी, राइट, गॉट इट। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि हम सब में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बोथ आर इक्वली प्रेजेंट, किसी में कोई चीज ज्यादा है किसी में कम। कुछ फीमेल्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड होती हैं कि दे डोंट इजीली गेट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग। उनको कितना भी आप कुछ भी कर दो, वो अपने बड़ी हिम्मत से वो करती हैं, बाहर जाती हैं, नहीं तो वो आर्मी में कैसे जाती? फीमेल का नेचर नहीं है, फेमिनिन एनर्जी नहीं है कि भाई आप जाओ किसी को मारो। हम कुछ फीमेल इतनी सॉफ्ट होते हैं, हम तो जरा सा खून देखते ही बेहोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसी फीमेल है जो बिल्कुल अपने फील्ड में इतनी स्ट्रांग है कि वो जाके सब कुछ करके आ जाएंगी, कहेंगी तुम बैठो मैं करके आ रही हूँ। तो उनके अंदर वो मैस्कुलिन पर्सनालिटी भी है, राइट? तो दिस इज हाउ वी गो टेंड टू चेक द फेस। ओके, तो हाउ वी विल चेक दिस? चलो सुजाता जी को हम जरा ले लेते हैं एक बार, इनकी हम मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सुजाता जी को जरा पिन कर देते हैं ताकि एवरीवन कैन सी देम। ओके, हाँ, अब सब सुजाता जी का फेस हम देख रहे हैं। Yes, ma'am. अब देखिए, ये बिल्कुल सेंटर से अभी हमने किया, तो लेफ्ट और राइट में ये हिस्सा सुजाता जी का राइट है, ये हिस्सा इनका लेफ्ट है। ओके, तो राइट और लेफ्ट में से कौन सा हिस्सा आपको प्रोमिनेंट लग रहा है? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। चलिए, आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो लेट अस लर्न इट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लास के बाद आप बाहर जाके भी कम से कम एक बेसिक चीज आप लोगों की चेक कर पाए कि ये पर्सन किस टाइप का होगा। लेफ्ट, राइट, कोई लेफ्ट कह रहा है, कोई राइट कह रहा है। ओके, Right. राइट, ठीक है। तो ज्यादातर लोग राइट कह रहे हैं, राइट? तो सुजाता जी आप बताइए कि आपको क्या बाहर रहना पसंद है या घर के अंदर रहना पसंद है? बाहर, हाँ, एक्चुअली सोशल मुझे सर्कल तो अच्छा है आपका? सोशल सर्कल अच्छा है? हाँ, ज्यादा नहीं है मैम। ओके। और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं एक चीज और देख लूं जरा इनके फेस की, साथ साथ मैं वो भी बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मिनट, कहाँ गई स्क्रीन? हाँ, तो आप ये बताइए, आप अपने आप को क्या ऐसा फील करती हैं कि आप बहुत पोलाइट हैं, स्पिरिचुअल हैं? यस। पोलाइटनेस है, फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ एक अच्छी लाइफ है आपकी, आपकी सबसे अच्छी बनती है। आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, लोगों यस, से बात करना, एक अच्छे से पोलाइटली बात करना, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी ग्रोथ है अच्छा कहीं ना लगता है। कहीं, या मैच हो रहा है? या फिर ऐसे लोग भी अच्छे लगते हैं जो अच्छे से बात करे, या फिर शांति से बात करे, वो हाँ, अच्छे लगते हैं मुझे। है ना? तो ये इनकी सोशल लाइफ अच्छी है,
क्योंकि ये थोड़े आउट गोइंग रहेंगे, जिनका राइट, क्योंकि वो शिव हो गए। शिव मतलब मेल पर्सनैलिटी। मेल का क्या होता है, वो लोगों के साथ बड़ा मेल जोल रखते हैं, कौन पता नहीं कब काम आ जाए, है ना। तो उसी तरह इनका भी यही है, इनको लोग पसंद भी करेंगे और इनका एक सोशल सर्कल अच्छा सा मेंटेन भी रहेगा। फ्रेंड्स होंगे वो भी अच्छे वाले फ्रेंड्स होंगे, जो इनको हेल्प भी करते होंगे और काम पे, ये टाइम पे काम बोलती होंगी तो वो कर भी देते होंगे, राइट सुजाता जी, इज दैट ट्रू? हाँ। यस मैम, ट्रैवल करना पसंद है और सोशल मीडिया पे अच्छा फैन फॉलोइंग है, मतलब हाँ देखा। व्यूज वगैरह ज्यादा है। हाँ मैच हो गया ना। तो ये इनका क्योंकि राइट यस। साइड प्रोमिनेंट है, तो वो बता रहा है इनका शिवा कैरेक्टर यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा प्रोमिनेंट है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, शिव प्रसाद जी को चेक कर लेते हैं। हम्म। एक मिनट, मेरे को स्टॉप शेयर करना पड़ेगा ताकि मैं फेस अच्छे से देख सकूं। क्लास में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम ऐसे ही एक एक पर्सन की ऊपर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। चलो अब शिव प्रसाद जी का चेक करते हैं। अब सब लोग बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि वो, उनका राइट मैम आपने फेस। मुझे अनम्यूट किया है। हम्म। आपने मुझे किया है अनम्यूट। नहीं नहीं, आपको शिव प्रसाद जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम्म। हम्म। Yes, ma'am. हम्म। अब शिव प्रसाद जी का राइट आपको प्रोमिनेंट लगता है या लेफ्ट, बताइए। मतलब उनके हिसाब से राइट बताइएगा, उनका राइट हैंड, उनका ये हिस्सा राइट है और ये हिस्सा लेफ्ट है, ओके। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? मतलब आपका ही दिख रहा है फेस, उनका नहीं दिख रहा है। हाँ मैं तो इनको स्पॉटलाइट किया हुआ है, इज ऑल्सो स्पॉटलाइटेड। एक बार रिमूव करके फिर से करती हूँ इन्हें। हम्म, 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 हम्म। यस हो गया। राइट राइट राइट। हम्म। इनका राइट ही प्रोमिनेंट है और इनमें भी वही, इनका सोशल सर्कल अच्छा है, ही इज स्पिरिचुअल, ही इज Yes, ma'am. वही जो अभी अब क्या था वही है शिव प्रसाद जी, राइट। स्पिरिचुअल भी हो, Yes, सात्विक yes, भी ma'am. हो एंड थोड़ा सा गुड सोशल सर्कल मेंटेन करते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। क्योंकि अब आपको देखना आ जाएगा ना फेस, आपको पता लगने लगेगा। देखिए ज्यादातर लोगों ने राइट ही लिखा है, इनका राइट पोर्शन ही ज्यादा प्रोमिनेंट है जब आप ध्यान से देखेंगे तो। अच्छा शिव प्रसाद जी, एक बात मुझे और बताइए कि क्या आप सेल्फ मेड हैं? Yes, ma'am. 100%. सेल्फ मेड है ना? ज्यादातर जो आज Yes. आप हैं वो आपने अपनी मेहनत से अचीव किया है, एम आई राइट? Yes, ma'am. From my studies. Yeah. है ना। और उसमें भी आपको जरूर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला होगा पढ़ाई में, Yes. कहीं ना कहीं। और एंड मुझे लगता है उसमें भी फादर ने काफी सपोर्ट किया होगा आपको, या मदर ने किया? फादर ने किया? Till फादर ने? no, ma'am. Mother. मदर, मदर ने किया ना। हाँ क्योंकि बोलते बोलते कंफ्यूज Hmm. हुई, मुझे मदर वाला हिस्सा ज्यादा प्रोमिनेंट लगा। मदर की तरफ से आपको सपोर्ट ज्यादा मिला है, मदर आपको बहुत पसंद करती थी। एंड लेकिन बने आप खुद हो अपनी मेहनत के दम पर। पेरेंट्स ने आपको वैसे सपोर्ट किया है, पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट है। एंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप थे आपके? My grandparents were born while I'm studying in eighth. My grandpa, and while I'm in ninth, my grandmother be still there. वही 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 इसलिए पूछा, क्योंकि इनका जो फोरहेड बता रहा है कि इनको ग्रैंड पेरेंट्स का उतना प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। या तो Hmm. पेरेंट्स का Yes, मिला ma'am. है या ये सेल्फ मेड ही हैं। ऐसा नहीं कि ग्रैंड फादर ने Hmm. कोई प्रॉपर्टी छोड़ दी इनके लिए कि यहाँ पे मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़ के गए हैं। जो है वो पेरेंट्स के थ्रू ही है, Uh, ऑफ कोर्स, राइट। तो देखिए हम फिर से। Also, हम्म, I am not with my grandparents from my younger age. We are separately living, and after 10th, my parents also didn't let me study. They told me you take job and study like that. yeah, that is why I told you ना कि you are a self made man, you have not taken anybody's help to whatever you have। ये नहीं कि फादर का बिजनेस था उसमें जाके बैठ गए, it is not like that, it is something No, that he no. has achieved on his own, okay। So this is how we can tell about someone। तो isn't it interesting? Tell me please everyone। अभी भी अगर अब इतने थोड़ा हमने पढ़ाई भी किया, थोड़ा हमने प्रैक्टिकल भी किया, प्लीज लेट मी नो राइटिंग इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू फील
about the course? Do you think it is quite interesting to know these things? ये समझ लेना, ये सागर की से एक बूंद हमने देखी है आज जो देखा है, because it is very vast study. It is not like that कि बस मैं एक क्लास में सब कुछ बताने लगूं, क्योंकि मेरे को भी बताते बताते कंफ्यूजन होती है। मैं आईज देख के बताऊं, या मैं नोज देख के बताऊं, या मैं चीक लाइंस देख के बताऊं, या शुड आई लुक एट द फोरहेड ओनली, शुड आई लुक एट द ईयर्स? बहुत कुछ आप बता सकते हो जस्ट बाय द फेस ऑफ अ पर्सन। गॉट माई पॉइंट? दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि एक है क्या चीज, कोर्स क्या है। तो अब आप एक बार मुझे यस कर लिख के ये बताइए कि हु ऑल थिंक कि मैं सीख सकता हूं और मेरे उसमें है, तो मैं सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न दिस कोर्स। प्लीज राइट यस इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न दिस कोर्स। प्लीज राइट यस यस यस, क्योंकि इसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू कोर्स डिटेल्स। Wow, wonderful. Good to know that so many people are interested. So for that, let me share some PPT. One more PPT with all of you. थोड़ी सी कोर्स की डिटेल बतानी जरूरी है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 10, क्योंकि इंटरेस्टिंग इतना है कि ये 10 डेज का कोर्स है एक्चुअली, और 10 डेज कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा। 11 डे आप मुझे कह रहे होगे मैम प्लीज सेशन और रखते हैं ना 2-3 दिन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सेशंस रहते हैं इसके अंदर। एवरी डे कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे और साथ साथ एनालाइज भी करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने बस पीपीटी पकड़ा दिया और आपने कर लिया, पढ़ लेना जी अपने आप। फुल कोर्स की डिटेल्स पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, एंड ड्यूरेशन है इसका 10 डेज। टाइम है 9 PM, स्टार्टिंग डेट है 23 जुलाई को। एनर्जी एक्सचेंज 11,111, क्यों बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट कोर्स, लेकिन ऑफर प्राइस में आज मिल रहा है 9,999। लेकिन अर्ली बर्ड्स को, जो लोग बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, आज रात को 12 बजे तक ये कोर्स आपको मिल जाएगा ओनली 7,777, 7,777। सोचिए 11,000 वाला कोर्स इतने कम में, ऑलमोस्ट 4,000 का डिस्काउंट, 4,444 का डिस्काउंट। लेकिन कल अगर आप मुझसे बात करोगे तो कल आपको कोर्स 10,000 में मिलेगा, डिस्काउंट पे निकाला है बिकॉज फर्स्ट टाइम आया है। इंटरेस्टिंग मुझे बहुत लगा, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को सीखें। ये है यूपीआई आईडी, मेरे इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। डोंट मिस दिस कोर्स, क्योंकि अगली बार जो आज ऑफर प्राइस है 7,777, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू। जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं वो जानते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ब्रिंगिंग दिस कोर्स। तो 7,777 कभी दोबारा ये फीस तो नहीं आएगी, नेवर। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम नीतिका किया था वो समझ सकते हैं मैंने क्या कितने में दिया था, और पहले जो एंजल्स बहुत पुराना करके बैठे, दे नो दैट वेरी वेल कि दैट फीस डजंट कम। तो दे सिर्फ आज का ऑफर है, पूरी पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस मिलेगा दैट यू कैन रिपीट द कोर्स फॉर फ्री if you pay it once, and whenever the course will be repeated you will get it for free. ये आपको ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगी, किसी जगह नहीं मिलेगी, कोई प्लेटफॉर्म ये नहीं दे रहा है, ये ऑफर किसी की भी नहीं है। तो शिवा प्रसाद जी हमारे साथ ऑलरेडी टैरो रीडिंग से जुड़े हैं, तो आई वुड लव टू नो फ्रॉम हिम कि हाउ इज ही लाइकिंग अवर बाय आफ्टर कनेक्टिंग विद अस, एंड how does he feel about that, because he might have done the courses from other channel other platforms also. So I would like to know his experience with us. Yes, ma'am. Because actually you are putting me to more courses. Actually, I am now totally confused because all the courses I am joining, every courses you are offering, because the teaching method and teaching style is very awesome, madam. Nothing to tell because I have studied with a lot of gurus, several courses. Like many courses I have done: astrology, Vedic astrology, KP astrology, numerology basics, crystals therapy basics, Reiki master level. Like that, lot of courses I have done till that, signature analysis, whatever the courses available, I am joining. But uh, because normally I am from Kerala, this area only Vedic astrology is prominent, and other courses are very less, and those people are charging heavy amounts. So comparing to that,
after seeing lot of arts and all, I initially I go for tarot course with one coach from she is also from North India, but actually I wasted my money. Actually, there 10,000 rupees I have paid, but I had nothing. I got nothing. Then somehow I found your art, but actually I'm thinking that it is blessing, because from you I got clarity on tarot, and also the batch is going on, and that Nikita Nitika Angel ka jo course, it is also money manifestation course also I have done. Now aura and chakra cleaning also I am doing with you. So the experience is awesome, madam. Nothing to tell extra anything, because you are doing perfectly, and I'm actually grateful to you and God for giving me such a good guru. Actually, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Now, Pinky ji, would you like to share your experience with spiritual journey and the courses, and with the policy that I usually give to people to repeat the course for free? Have you been benefited? आपको benefit हुआ है कभी इसका? नहीं, मुझे तो हमेशा ही हुआ है। और मेरे ख्याल में मैंने कोई कोर्स आपका छोड़ा नहीं है। जो चाहे मैंने अभी तो मुझे नीतिका करने के बाद फंड की भी चिंता नहीं रहती है। अब जैसे आपने बोला, मैंने कहा मुझे नीतिका से कल एप्लीकेशन लगानी है, तो मुझे एक कोर्स करना है, तो मुझे अभी वो भी चिंता नहीं है। आपके साथ करने के बाद ये है कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कभी भी आपसे कुछ भी पूछो, आप हर कभी भी रात में, मैं तो ये देखा रात में भी अगर गलती से पूछ जाए तो भी आप उठाते हो, और जो भी प्रॉमिस आप करते हो वो सारे पूरे होते हैं। तो इससे अच्छा तो टीचर से कुछ चाहिए नहीं होता है। तो जो मुझे मुझे तो सब चीज, एंजल्स का मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, आपने जो भी पढ़ाया। नितिका का बहुत अच्छा हुआ। तो टैरो का तो था ही, मैंने आपको बताया पूरा कि टैरो जहां से किया था मैं रीडिंग ही नहीं आ रही थी, तो आपसे करने के बाद मैंने पीछे देखा ही नहीं है। कभी मैंने नोट्स नहीं पढ़े हैं, कार्ड उठाती हूँ, मेरे वही माइंड में आता है कि आपने फर्स्ट क्या बताया था, सेकंड में क्या बताया था, मैं उसको रीड कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल आपका पढ़ाने का स्टाइल है। टीचिंग इतनी अच्छी है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी ऐसे टीचर से ऐसे ही बोल रहे हैं। जो बोलते हैं वही होता है, और वैसा बिल्कुल सही वैसे ही निकलता है। कि अभी आप वेबिनार में बता रहे हो, बाद में कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मैं तो ये भी ज्वाइन करूंगी। और बस मुझे नितिका से अपनी एप्लीकेशन लगानी है, कल ही रख दूंगी ऑर्डर में कि मेरे को पैसे चाहिए, मुझे करना है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। तो जितने भी यहाँ पे नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं, देखिए मेंशन आप लोग, जो लोग सोचें सर्टिफिकेट क्या करेंगे आप सर्टिफिकेट कलेक्ट करके, ऐसा क्या सीख लिया? वर्कशॉप अटेंड करने का सर्टिफिकेट कहाँ होता है? ऐसा कहाँ यूज करेंगे उसे, ये बताइए। बहुत लोग लिख रहे हैं कि वो एक्चुअली कोर्स का फ्लायर बनता है तो दिखाया जाता है इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। जब आप कोर्स पूरा करेंगे तभी तो सर्टिफिकेट दूं। एक वर्कशॉप अटेंड करने का क्या सर्टिफिकेट, उसको कहाँ आप यूज करने वाले हैं? जस्ट लेट मी नो प्लीज। ये देखिए आप लोग, अरे मैंने वर्कशॉप करने का, एक्चुअली हमारा कोर्स सर्टिफाइड होता है तो इसके लिए होता है कि आज वर्कशॉप होती है, फ्री वर्कशॉप, तो उसके लिए हम बुलाते हैं। ऐसा आपने क्या सीखा बताइए, क्या कोर्स? कहीं सर्टिफिकेट जाके दिखाएंगे, आप बोलेंगे मैं फेस रीडिंग की वर्कशॉप अटेंड की थी। आप किसी की फेस रीडिंग में कुछ भी बोलेंगे तो माई नेम विल बी अफेक्टेड ना। खाली 1 घंटा बिठा के मैंने आपको क्या ऐसा सिखा दिया जिसका मैं सर्टिफिकेट दे दूं? ये जो वर्कशॉप होती हैं ये यूजुअली कोर्स की प्रमोशन के लिए होती है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि द टाइप ऑफ टीचिंग, अबाउट द वे ऑफ टीचिंग, यू शुड नो अबाउट व्हाट विल बी टोल्ड टॉट टू यू इन दिस कोर्स। पूरा बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ओके, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का कहीं यूज होता हो? मुझे तो नहीं लगता कि किसी जगह आप जाके वो सर्टिफिकेट दिखाओगे और आपको कोई जॉब दे देगा कि हाँ जी आपने एक वर्कशॉप पार्टिसिपेट किया। तो डोंट डोंट कोर्स का टाइम रहेगा 9 PM, और 10 डेज का पूरा वास्ट एक्सटेंसिव कोर्स है। इसके अंदर आपको एक एक इवन आईज की डेप्थ कैसे, आईज का कलर, आईज का शेप, आईज का साइज, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। फेस का एक एक फीचर, इवन चीक्स कैसे हैं, राउंडेड हैं या बोनी चीक्स हैं, या यहाँ से कई बार गड्ढा पड़ता है, डिम्पल पड़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग टेल्स समथिंग अबाउट दैट पर्सन। द मेन थिंग इज वेदर वी हैव व्हाट वी हैव लर्नड, किसी का फेस देख के आप बता पाए। ओके, तो ये एक सर्टिफाइड कोर्स है।
कोर्स रिपीट करना हमेशा फ्री होता है मेरे साथ। बाय चांस अगर, बिल्कुल माहिर जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जिनके लिए ये काम की चीज है उनको जरूर बेनिफिट होगा। दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, यस। चलिए, जैसे मेघा जी ने पूछा है कि इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो यस, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो एक साथ नहीं पे कर सकते, दे कैन पे द फीस इन 2 इंस्टॉलमेंट। चलिए, ये भी मैंने बेनिफिट दे दिया कि किसी को भी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो करे। और बहुत प्यारा कोर्स है, इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है 10 डेज का। एंड पूरे पीडीएफ मिलेंगे, पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, जैसे पीडीएफ से मैंने पढ़ाया है इसी टाइप से आपको नोट्स मिलेंगे। एंड ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। और रात के 12 बजे तक पेमेंट बहुत कम है, दैट इज 7777 ओनली। यू जस्ट पे इट, send the screenshot, and then you will be added to the main group. Fees is, actual fees is, एक बार फिर से मैं एक बार पीडीएफ शेयर करके दिखा देती हूँ। These are payment details. फिर से एक बार सब देख लीजिए। ड्यूरेशन 10 days, टाइम 9 PM, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd July। एंड एनर्जी एक्सचेंज, ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज इज 11,111, ऑफर प्राइस में 9,999, बट स्पेशल ऑफर में 7777, जिसको पेमेंट आपको रात तक करना है, रात के 12 बजे तक, यानी कि 2 आवर्स आपके पास हैं पेमेंट के लिए। जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट। और जिसको ऐसा लगता है कोर्स तो मुझे बुक करना है लेकिन एकदम से मैं 7777 नहीं पे कर पाऊंगी, तो भी 7777 की कॉस्ट में ही आप चाहें तो 50% पेमेंट अभी करके बुक करिए और बाकी का कोर्स स्टार्ट होने के बाद दीजिए। ओके, तो डिटेल्स मैं अभी ग्रुप में जस्ट आफ्टर द क्लास मैं शेयर कर दूंगी। दिस इज द, किसी को अभी करना है तो अभी सामने से मैं थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ। आप इसको चाहे तो स्कैन करके इंस्टेंटली कर सकते हैं पेमेंट, क्योंकि कल अगर आप ये बोलेंगे तो ये कोर्स आपको 9999 में ही मिलेगा। तो पूरा इतना बेनिफिट हो रहा है, तो आप चाहें तो कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर आई थिंक वी शुड लीव नाउ, वी शुड टेक अ लीव। वेटिंग फॉर मैनी एडमिशंस। पिंकी जी, आपका तो सबसे पहला है ही। थैंक यू हितैषी जी, वेलकम। हाँ, तो शॉर्ट में क्या बताऊं, अभी रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में, डोंट वरी। हाँ, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी थोड़ी देर बाद ही। तो जिन लोगों, जो लोग लाइव सेशन में नहीं बैठ पाए या देर से आए, वो आप उस पे जा सकते हैं। जिसका सेशन छूट गया वो दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके, अमृता जी, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स। मेरे इसी नंबर पे, आपके ग्रुप में मेरा फोन नंबर है ही, आप उसी फोन नंबर पे जीपे कर सकते हैं अलग से, अगर डिटेल जब तक नहीं आती है। ओके, ओके देन, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट मैम, गुड गुड नाइट। नाइट। Good night, bye.